Students, I Sushma Kataria from Surya School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about the 5th chapter of 8th class syllabus, While the Auto Waits. So this chapter was written by O. Henry. Basically the theme of this chapter is appearances versus reality, self deception, and climbing the social ladder. Actually the appearance versus reality, that means sometimes when we look towards a thing, it is not the same as in the reality. And self deception, that means a person sometimes it you can say he or she will not behave the same as he was basically in. Actually climbing the social ladder, that means sometimes what happens, sometimes the person are showing herself in that way as it was not in the reality. Okay. So we have two main characters in this chapter. One is a girl character. The name is not given here because she didn't tell her real name in this chapter. So she is secretive, dishonest, ambitious, and hysterical. Secretive, that means she completely do not tell anything particular about her. She completely did not reveal her own identity, what her name is, where she used to live, and what kind of things she used to do. Dishonest, because she always tell the lie, but whenever the person is saying something or talking to her about something, she always tell lie to him. ओके एम्बिशियस, व्हेन द पर्सन इज टॉकिंग टू हर, जब भी वो पर्सन उनसे बात कर रहा है तो उनकी बातों से वो लग रहा है कि बहुत ही एम्बिशियस. एम्बिशियस क्या होता है कि आप एक इंसान जो कहते हैं ना, उसकी बहुत बड़ी बड़ी आशाएं होती है कि ऐसा मैं तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. तो उसकी उसकी भाषा से, उसके लैंग्वेज से वो लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है. ओके. Hysterical, that means the person is sometimes being very you can say in a very commenting type of when a person wants to comment on something, when he are kind of making someone's fun, किसी का मजाक बनाने की कोशिश जब करते हैं उस इंसान को बोलते हैं. ओके. सो वी हैव द सेकंड कैरेक्टर, पार्कन स्टेकर. Okay. He is also very kind of secretive. He is also secretive है, calm है, and careful. He is very different kind of person. जैसे वो girl है उनसे थोड़ा सा अलग है. secretive, that means वो भी अपने बारे में ज़्यादा कुछ disclose नहीं कर रहे हैं, वो भी अपनी real जो reality है वो नहीं बताते हैं. ही इज़ वेरी काम काइंड ऑफ पर्सन, मतलब बहुत ही शांत रहने वाला. केयरफुल, दैट मीन्स जो भी वो बोल रहा है बहुत ही ज़्यादा नाप तोल के वो बात कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे मेनली टू कैरेक्टर्स हैं. ओके. फर्स्ट वन जो हमारी पर्सन है, जो फर्स्ट हमारी जो कैरेक्टर हैं वो है सिक्रेटिव हैं, वो भी डिसऑनेस्ट हैं, बट एम्बिशियस हैं, एंड हिस्टेरिकल है. सो दीज आर द कैरेक्टर्स द गर्ल हैव इन हिम, हर. और जो द सेकेंड कैरेक्टर वी हैव इन अस इन दिस चैप्टर इज Mr. Parkin Staker. He is also very secretive, calm, and careful. So let's discuss about the summary of this chapter. So the story based on two characters. We have two characters in this chapter. So first one is girl. There was a girl in a large meshed wheel. Wheel, that means a kind of जैसे नेट का जाली वो लगाते होते ना. ओके. जो नेट की जो जैसे बहुत रिच पर्सन्स होते हैं उनके कैप में, जो फीमेल्स होती है उनके कैप में एक नेट लगा होता है, उसको मैश्ड वेल यहाँ पे बोला गया है. ओवर हर फेस when she turned a page, when she was sitting in the she was sitting in a public park on the bench, and she was reading a book. Okay. And when she was reading a book, when she was turning a page, the book slipped on her hand and a young man punched upon it. That means एक young man आते हैं, वो book उठाते हैं. The young man then sat before the girl and then told he had an eye for her that day. That means वो जो person है, जो दूसरा जो boy है, वो है पार्कन स्टेकर. Clear.
तो क्या दिखाया है, एक गर्ल जो है शी वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच एंड शी वॉज रीडिंग इन अ पार्क, शी वॉज रीडिंग अ बुक एंड सडनली द बुक स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, और जो वो पर्सन है पाकन स्टेकर जो है, ही कम एंड टेक द बुक एंड गिव इट टू हर, वो उनको वापस देते हैं और वो कहते हैं कि मैंने आपको कल भी यहाँ देखा था, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। ओके, द यंग मैन नेम इज मिस्टर पार्कन स्टेकर, but in the country the girl didn't tell her real name and said her name is all over the papers and people would recognize her easily. Okay, when the boy asks what your name is, तो गर्ल जो है वो झूठ बोल देती है कि भाई मैं, उनका मतलब अपना रियल नेम नहीं बताती हैं, वो बताती हैं दैट मेरा तो नाम जो है, मैं बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हूँ एंड माई नेम यू कैन फाइंड माई नेम ऑल ओवर द सिटी, ऑल ओवर द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, यू कैन फाइंड इट ईजिली। सो गर्ल टॉक्ड अबाउट द वेल्दी लाइफ, वो क्या बोल रही, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, शी टॉक्ड इन अ सेम वे, शी टॉक्ड अबाउट हर वेल्दी लाइफ, वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वालों की बातें कर रही हैं, वेल्दी पर्सन, वो कहते हैं शी यूज टू डेट अ वेल्दी पर्सन एंड देन द यंग मैन टोल्ड हर दैट ही वर्क्स। अब देखो, जो वो लड़का है, ही ऑल्सो टोल्ड हर द रोंग, वो क्या बोलता है दैट ही वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट अक्रॉस द स्ट्रीट एज अ सिंपल कैशियर अटेंडेंट। ठीक है, जो लड़का है वो बताता है कि मैं एक कैशियर अटेंडेंट के तौर पर यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ। Having a surprise on her face, the girl looked at her watch and suddenly become in hurry. Okay, अभी तक जो गर्ल है वो पहले तक थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर रही है उस लड़के में, क्योंकि उसको लगता है, क्योंकि उसके जो पर्सन है, ही यूज टू वेयर अ वेरी नाइस काइंड ऑफ ड्रेस, बहुत ही अच्छे उन्होंने कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छे से बात कर रही है। लेकिन जैसे ही वो बॉय जो है वो ये बताता है दैट आई यूज टू वर्क एज अ कैशियर, तो उनको लगता है कि ही वो, जो गर्ल को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच पर्सनैलिटी नहीं है। सो वो क्या करती है कि आई मीन हरी, मुझे जल्दी जाना है, मतलब उनका जो बिहेवियर है, टॉकेटिव, जो बात करने का जो तरीका है, दैट कम्प्लीटली चेंज्ड विद दैट पर्सन। ओके, सो जो मिस्टर पाकन स्टेकर है, ही ऑफर्ड अ गर्ल अ वॉक बट द गर्ल इंस्टेंस वॉकिंग होम अलोन। तो वो यहाँ पे, क्योंकि जब उसको ये पता चलता है दैट द बॉय वॉज नॉट दैट मच अ रिच काइंड ऑफ पर्सन, सो व्हाट शी डिड, वो कहते हैं कि मैं अकेले ही घर चली जाऊँगी, आई डोंट वॉन्ट एनी वंस कंपनी। देन सडनली द अ वेट्रेस कम, जैसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं, सडनली एक वेट्रेस जो है वो आती है, येलिंग दैट मीन्स चिल्लाती हुई एट द गर्ल, टेलिंग हर दैट शी इज़ लेट फॉर हर शिफ्ट इन द रेस्टोरेंट। द वेट्रेस कीप ऑन इंसिस्टिंग दैट द गर्ल गो येट गेट ड्रेस्ड अंटिल शी सॉ मिस्टर पाकन स्टेकर। अब देखो यहाँ पे वो क्या बताती है कि जब वो जो दोनों जब बातें कर रहे थे, द गर्ल एंड पाकन स्टेकर, व्हेन दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, तो सडनली व्हाट हैपेंड, एक वेट्रेस जो है वो आती है और उधर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है उस लड़की पर, कहती है कि वाई यू आर गेटिंग लेट फॉर योर शिफ्ट इन द रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में, यानी कि यहाँ से पता चलता है, एक अंदाज़ा लग जाता है दैट वो जो गर्ल है वो क्या करती है, वो एक वेट्रेस का काम करती है इन अ रेस्टोरेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो लड़की है, वो भी नहीं चाहती कि जो पाकन स्टेकर है उसको उसकी रियलिटी का पता चले, तो वो भी वहाँ से फटाफट खड़ी होकर उसके पास जाती है लड़की को, वो उसको थोड़ा सा नोटिस कराती है कि इसके सामने, मतलब बॉय के सामने प्लीज़ मत बोलिए। तो वो उनको क्या बोलती है कि ओके, आई एम जस्ट गेटिंग ड्रेसिंग अप, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ एंड जस्ट यू गो। ओके, सो द वेट्रेस अपोलोजाइज फॉर येलिंग। अब जब जैसे ही जो वेट्रेस है वो पाकन स्टेकर को देखती है, वो कहते हैं ओके ओके सॉरी, आई डोंट वांट टू येल यू, मुझे आप पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। आफ्टर रिकोगनाइजिंग द मैन स्टैंडिंग, ओके, वो उसको कहते हैं कि मुझे वो पहचान लेती है कि वो जो पर्सन वहाँ खड़े हैं वो कौन है, तो वो कहते हैं कि ओके मुझे यहाँ पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। द गर्ल कंटिन्यू वॉक लिविंग मिस्टर पाकन स्टेकर स्टैंडिंग इन द पार्क। अब जो गर्ल है, और क्योंकि वेट्रेस उस पर चिल्ला रही थी, तो वो जो गर्ल है वो चली जाती है, वो पाकन स्टेकिंग वहीं खड़े रह जाते हैं। द वेट्रेस कंटिन्यूड फॉलोइंग द गर्ल वाइल येलिंग टू हर एट हर ड्रेस अप फॉर द लेट शिफ्ट। ओके, और जैसे वो थोड़ा सा दूर जाते हैं तो जो वेट्रेस है अगेन स्टार्ट येलिंग ऑन दैट गर्ल एंड सेड दैट गो एंड चेंज योर ड्रेस सून बिकॉज यू विल गेट लेट फॉर योर शिफ्ट। ओके, सो यहाँ पे पता चलता है कि अभी तक जो लड़की बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी किसकी, wealthy, that she used to date a wealthy person, so these kind of things, all these things were completely lie. So, and in the end of the chapter what happened, in the end of the chapter a man dressed, उनका नाम होता है हेनरी, हेनरी जो एक
क्रेफर जो होता है दैट इज कॉल्ड ड्राइवर, अप्रोच टू मिस्टर पार्कनस्टेकर एंड ऑफर्ड हिम अ राइड एंड ही सेड दैट दे आर लेट फॉर द डिनर अपॉइंटमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि पार्कनस्टेकर जिसने पहले क्या बताया था दैट आई एम वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, आई एम वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, वो जो रेस्टोरेंट में काम करता है एज अ कैशियर, वो झूठ बोल रहा था क्योंकि उसका ड्राइवर उसके पास आता है, उस ड्राइवर का नाम होता है हेनरी, आप बुक में देख लेना, ठीक है। उसका द नेम ऑफ द ड्राइवर वॉज हेनरी एंड ही सेड दैट वी आर गेटिंग लेट बिकॉज वी हैव अ डिनर अपॉइंटमेंट विद समवन, सो वी हैव टू मूव ऑन। तो इस तरह से वो अब उस दोनों जो है जो स्टोरी का ये एक प्ले है, इसमें क्या होता है प्ले का एंड हो जाता है एंड द टाइटल इज द ऑटो इज वेटिंग। द ऑटो, यहाँ पे गाड़ी को एक तरह से ऑटो की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, द ऑटो इज वेटिंग। सो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमें क्या देखने को मिला दैट एक जो लेडी है वो अपनी अपनी जो रियल आइडेंटिटी है दैट शी कम्प्लीटली डिडंट शो दैट, ऑन द अदर हैंड मैन डिड द सेम, बट जो गर्ल है वो जो नहीं है उसको दिखाने की कोशिश करती है, जो सोशल अपने आप को कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मैं जो नहीं है उसी चीज़ को वो शो करने की कोशिश करते हैं। तो कन्फ्लिक्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट होता है मतभेद जो है वो क्या है, एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट अकर्ड विद इन द मैन एंड द यंग वुमेन, दे आर बोथ न्यू दैट ईच अदर वर लाइंग, दोनों ये जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एंड ईच अदर आउट ऑफ देयर लाइज, और दोनों के दोनों एक दूसरे को ये बताना नहीं चाहते कि आप लोग झूठ बोल रहे हो। और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट क्या है बिटवीन द यंग वुमेन हु प्रिटेंडेड टू बी रिच, ओके। आउटर कन्फ्लिक्ट क्या है, वो कुछ बताती है कि रिच है, एंड अ वेट्रेस हु न्यू the real identity of the women. The waitress was not hesitant to call out the young women. Presentation depict her डिनाइल, वो अपने जो डिनाइल है, वो डिनाइल मतलब वो अपने जो रियल आइडेंटिटी को डिनाई करते हुए एक फेक आइडेंटिटी को शो करने की कोशिश कर रही है, हालांकि जो वेट्रेस है उसके जो रियल आइडेंटिटी को शो कर देती है उस पर्सन के सामने। सो सम ये जो है वो आउटर, ये एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट हो गया। सो मॉरल ऑफ दिस चैप्टर क्या है, अब हमें मतलब वट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, एक्सेप्ट योर सेल्फ, दैट मीन्स वी शुड एक्सेप्ट हु सो एवर वी आर, हम जैसे हैं हमें अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। कई बार क्या होता है हम एक दूसरे के सामने हम बता देते हैं कि हाँ हम तो, हमारे पास तो ये है वो है, लेकिन बाद में जब, क्योंकि रियलिटी सबको एक ना एक दिन पता चल ही जाएगी, तो समटाइम्स इट बीइंग वेरी, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इंसल्टिव होता है कि क्योंकि सामने वाला तो आपसे पूछेगा कि अरे तुमने तो ये कहा था कि तुम्हारे पास ऐसा है वैसा है, बट इट्स नॉट द रियलिटी। सो बी योर सेल्फ बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स यू फॉर बीइंग हु यू आर, क्लियर। सो आपको वैसा ही रहना चाहिए जैसे कि आप हैं, ठीक है। स्टॉप टेलिंग लाइज दैट मे कंक्लूड योर अनरियलिस्टिक ड्रीम। समटाइम्स देखो, अभी तो जैसे आप मान लीजिए जब आप झूठ बोलते हो तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको बहुत अच्छा लगे, आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाए या आपको एक अच्छा कुछ बेनिफिट हो जाए, बट लेटर ऑन ये जो झूठ है, ये जो एलिमेंट है, ये डेफिनेटली आपका एक अनप्लीजेंट ड्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा, अनरियलिस्टिक ड्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप कभी भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे। अनप्लीजेंट मैंने क्यों बोला, बिकॉज व्हेन द पर्सन गॉट द रियलिटी अबाउट दैट थिंग्स, अब जब उनको रियलिटी पता चलेगी तो क्या होगा, दे डेफिनेटली फील बैड अबाउट इट एंड दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट इन देयर आइज अबाउट यू। सो इट्स बेटर, so be whatever you are, okay। So these are the this is the story we have in this chapter. I hope you completely understand it. Thank you.